Good morning all. So today we are going to discuss the vectors. We are going to discuss the motion in a plane, or we are going to start with the chapter number 4 of your textbook, which is motion in a plane, or it is also called as kinematics part 2. So in kinematics part 2 or motion in a plane, we are going to study basically the two-dimensional motion. Earlier we were only discussing about the motion along a straight line or one-dimensional motion. So here we are going to study all the facts that are related to motion in a plane. So the most important topic here is vectors, right? So we have already studied about scalars and vectors. All those quantities which have only magnitude and direction doesn't matter for them are called as scalar quantities. For example, time, mass, right? For example, length, for example, distance, for example, energy. All these are the scalar quantities. When we are when we clearly specify that a particular quantity should have direction, and direction matters for it, and direction is very important. Without the mention of direction, that quantity will not have any relevance. So all those quantities in which magnitude as well as direction is specified are called as vectors. So in this chapter we are going to study vectors in detail, right? So what is a vector? Any quantity which has magnitude as well as direction is called a vector quantity. The physical quantities like displacement, like velocity, like acceleration, force, all these are vector quantities. So अभी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करेंगे, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड तो चलो हम मैथमेटिकल वैल्यू से दिखा देंगे. पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर के लिए हमें उसको कुछ ना कुछ सिंबल देना पड़ेगा, हमें उसका कुछ ना कुछ एक फिक्स डायग्राम स्पेसिफाई करना पड़ेगा, राइट? सो किसी भी वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम क्या करते हैं? वी टेक एन एरो हेड. वी विल टेक अ एरो हेड, और एरो हेड का जो हेड पार्ट होगा दैट विल टेल द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और जो टेल पार्ट होगा, टेल पार्ट विल टेल द ओरिजिन ऑफ द वेक्टर. मतलब जहां पे टेल है वहां से हमें ओरिजिन पता चलेगा, और जहां पे हेड होगा उससे हमें उस वेक्टर का डायरेक्शन पता चलेगा. अगर हमने लिखा है ए, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ ए. मतलब मैग्नीट्यूड मतलब ये हम स्केलर की बात करें, लेकिन अगर हमने इसके ऊपर छोटा सा ये वेक्टर साइन बना दिया, इसका मतलब ए कैसी क्वांटिटी है? ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी. आई होप दिस इज क्लियर. सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मेन types of vectors, right? In this chapter we are going to discuss all types of vectors. So जहां भी मैं वेक्टर में स्पेसिफाई करने वाली हूं, वेक्टर लिखने वाली हूं, everywhere I am going to use the sign of vector. ऊपर वेक्टर बना है तो मतलब it is a vector quantity, right? So starting with the different types of vectors. Yes, starting with the different type of vectors. The first one is equal vector. Two vectors are said to be equal vectors. इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर ए, इसको हमने नाम दे दिया वेक्टर बी. Two vectors are said to be equal vectors if they are having same magnitude and same direction. In this diagram, vector A is equal to vector B. क्यों? क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है. दोनों का डायरेक्शन भी क्या है? सेम है. So vector A here is equal to vector B. Direction is same as well as magnitude of A is also equal to magnitude of B, right? So these are equal vectors. Next is negative vector. अगर कोई दो वेक्टर, मैंने कहा ये है वेक्टर A और ये मैंने इक्वल वेक्टर ही ले लिया, लेकिन उसका डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट ले लिया. एंगल कितना है दोनों के बीच का? 180 डिग्री. देन वेक्टर B is said to be the negative of vector A. Here we can write that vector B is the negative of vector A, क्योंकि B का मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन क्या है? ऑपोजिट है. सो B is a negative vector of vector A. इसे हम वेक्टर A रीड करेंगे, इसे हम वेक्टर B रीड करेंगे, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट, कोलीनियर वेक्टर. जैसे कि हम मैथ्स में पढ़ते हैं कोलीनियर पॉइंट, वो सारे पॉइंट जो एक ही लाइन पे हैं, all these points are called as collinear point. Similarly, all those vectors which lie along the same line are called as collinear. Vector A, vector B, vector C, vector D, vector E, ये सब क्या है? collinear vector. बट जरूरी नहीं है ये सेम लाइन पे ही हो. अगर कोई दो वेक्टर A और वेक्टर C
ये दोनों क्या है, क्योंकि इन सारे वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना है 0 डिग्री, बट वेक्टर ए और वेक्टर सी के बीच में भी एंगल कितना है 0 डिग्री। सो ये वेक्टर्स भी क्या कहलाएंगे, कोलिनियर वेक्टर्स। जैसे इस केस में ए एंड बी आर इक्वल एज वेल एज दे आर कोलिनियर बिकॉज दे आर पैरेलल। पैरेलल मींस इनके बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, राइट। सो ऑल द वेक्टर्स व्हिच are parallel to each other are also called as collinear vectors because the angle between them is 0, right? Coming to next, coplanar vector। हमने क्या किया, हमने एक प्लेन लिया, ओरिजिन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट, और कोई भी दो वेक्टर, हमने कहा वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दोनों वेक्टर क्या है, दे आर इन एक्स वाई प्लेन। सो व्हेन द एनी टू वेक्टर्स और मोर देन टू वेक्टर्स, एनी सेट ऑफ वेक्टर्स व्हिच लाई इन द सेम प्लेन आर कॉल्ड एज कोप्लेनर वेक्टर्स। ये दोनों वेक्टर क्या है, कोप्लेनर। और वेक्टर सी और वेक्टर ए क्या है, नॉन कोप्लेनर, बिकॉज वेक्टर सी का प्लेन अलग है एक्स जेड, और वेक्टर ए और बी का प्लेन क्या है, सेम है एक्स वाई। सो ए एंड बी आर कोप्लेनर एंड ए एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, बी एंड सी आर नॉन कोप्लेनर, बी एंड डी आर नॉन कोप्लेनर। इनका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है और इनका डायरेक्शन भी कुछ भी हो सकता है। दे कैन हैव एनी डायरेक्शन, एनी मैग्नीट्यूड, बट इफ दे लाई इन द सेम प्लेन दे आर सेड टू बी कोप्लेनर वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मीन्स नाम से ही पता चला, को इनिशियल, दे विल हैव सेम इनिशियल पॉइंट। कोई भी सेट ऑफ वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, तीनों को ओरिजिन पॉइंट क्या है, सेम है। सो ऑल द थ्री वेक्टर्स आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये तीनों वेक्टर्स कैसे हैं, दीज आर को इनिशियल वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट इज को टर्मिनस वेक्टर्स। कोई भी नंबर ऑफ वेक्टर्स जिनका टर्मिनस, जिनके टर्मिनल्स क्या हो, सेम हो, दोज आर कॉल्ड एज कोटर्मिनल। वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, सबके सब कहाँ आ रहे हैं, एक सिंगल पॉइंट पे आ रहे हैं। सो सबका टर्मिनल एक जगह पे आके मिल रहा है। सो वेक्टर ए बी सी डी आर को टर्मिनस वेक्टर्स, राइट। नेक्स्ट इज पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच हैव अ इनिशियल पॉइंट, राइट। पोलर वेक्टर आर दोज वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। या तो उनका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है या उनका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होता ही होता है। दोज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर्स, दे हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर, फोर्स वेक्टर इज अ पोलर वेक्टर, राइट। इन सबका कुछ ना कुछ स्टार्टिंग पॉइंट होगा ही होगा, या पॉइंट ऑफ, हम कौन से पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं या हम कौन से पॉइंट से वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो वहां वो हमें कहां से चाहिए, सो दे शुड हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ऑल दीज वेक्टर्स आर कॉल्ड एज पोलर वेक्टर्स। नेक्स्ट इज एक्सियल वेक्टर। ऑल दोज बॉडीज विच आर रोटेटिंग, विच आर अंडर द इफेक्ट ऑफ रोटेशन। ये कोई भी बॉडी है जो रोटेट कर रही है। अभी जब कोई भी बॉडी रोटेट करिए, मैंने कहा कि ये दिस डस्टर इज रोटेटिंग लाइक दिस, व्हेन इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, व्हेन इट सपोज इट इज रोटेटिंग लाइक दिस, तो यहां पे कोई ना कोई एक्सिस है जिसके अलोंग ये रोटेट कर रहा है। अभी मैंने इसको ऐसे कहा, सो दिस फिंगर इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, right? So for anything, any object which is under rotation, there will be an axis, right? So depending on how the body is rotating, the axial vector is taken. Say अगर body anti-clockwise move कर रही है तो ये इसका axial vector होगा, axial vector along the axis. और अगर body ऐसे rotate कर रही है clockwise, clockwise, ये anti-clockwise थी, ये anti-clockwise थी, ये कैसी है clockwise, तो इसका axial vector ये होगा downward. Axial vector. The direction of axial vector is always given by right hand screw rule. So we have already discussed right hand screw rule in 11th also. So what is right hand screw rule? If you remember Maxwell's right hand thumb rule, if you are holding the current carrying conductor in your right hand, then the direction of thumb represents the direction of current and the curling of finger tells the direction of magnetic field. If you remember, तो करंट अपवर्ड होता था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती थी, एंटी क्लॉकवाइज। करंट डाउनवर्ड होता था तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती थी, क्लॉकवाइज। इसी तरह से राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड स्क्रू रूल से हम क्या देते हैं, वी गिव द डायरेक्शन ऑफ दिस। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो एक्सियल वेक्टर कैसे होगा, अपवर्ड। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, क्लॉकवाइज है तो एक्सियल वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड अलोंग द एक्सिस।
अभी आप अगर किसी स्क्रू को ओपन करते हैं, व्हेन यू आर ओपनिंग अ स्क्रू, व्हाट काइंड ऑफ टर्न यू आर गिविंग? यू आर गिविंग अ एंटी क्लॉकवाइज टर्न। तो डिस्प्लेसमेंट कहां होता है? ऊपर की तरफ इंक्रीज होता है। सो व्हेन यू आर गिविंग एंटी क्लॉकवाइज टर्न, डिस्प्लेसमेंट इज अपवर्ड, दैट इज डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड। व्हेन यू आर क्लोजिंग अ स्क्रू, या आप लिड क्लोज कर रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है। व्हेन यू आर क्लोजिंग अ स्क्रू, द डिस्प्लेसमेंट, द एक्सियल वेक्टर इज डाउनवर्ड। सो कहीं भी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज हो रहे तो एक्सियल वेक्टर अपवर्ड, डाउनवर्ड हो रहा है तो डाउनवर्ड। इसीलिए हम इसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट इज फिक्स वेक्टर और लोकलाइज्ड वेक्टर। नाउ फिक्स वेक्टर, एनी वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड इज कॉल्ड एज अ फिक्स वेक्टर और अ लोकलाइज्ड वेक्टर। जैसे हमने कहा कि ये पॉइंट है कोई, राइट, ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट का यहां से एक फिक्स डिस्टेंस है ओरिजिन से, और ये डिस्टेंस ही क्या कहलाता है? हमारा पोजीशन वेक्टर कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। सो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर? पोजीशन वेक्टर इज अ फिक्स वेक्टर, क्योंकि उसका एक इनिशियल पॉइंट जो है, दैट इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, दैट इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, क्योंकि कितना दूर है वो ओरिजिन से, दैट मैटर्स। सो बिकॉज इनिशियल पॉइंट इज फिक्स्ड, पोजीशन वेक्टर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्स वेक्टर or localized vector, right? So position vector is always because the initial path lies in the origin, right? It starts from the origin. Similarly free vector means जिसका initial point fixed नहीं है, they are also called as non localized vector. So initial यहाँ पे लिख सकते हैं हम, initial point is fixed, right? And free vector means initial point is not fixed, जिसका initial point fixed नहीं होता वो क्या होता है? free vector, or it is also called as non localized vector. For example, the velocity vector of a particle suppose you are finding the velocity vector of a particle and the particle is moving along a straight line. ये straight line लिया O A B C, अभी मैं वेलोसिटी ओ से भी ले सकती हूँ, या वेलोसिटी ए से भी ले सकती हूँ, या वेलोसिटी बी से भी ले सकती हूँ। सो इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं है। सो द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज अ फ्री वेक्टर और नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर जैसे नाम से ही पता चला, जीरो वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज जीरो मैग्नीट्यूड। उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? जीरो, बट उसका डायरेक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि उसका डायरेक्शन नहीं होगा, जीरो मतलब जीरो, मैग्नीट्यूड जीरो हो सकता है, बट इट विल हैव सम डायरेक्शन, इट विल हैव सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, as per the situation it will have some arbitrary direction, right? So zero vector or null vector is a vector whose magnitude is zero but it has some direction, right? It is always represented by writing zero with a vector. So this is called as zero vector or null vector, right? For example, suppose a body is at rest, कोई body rest पे है तो उसका velocity vector कितना होगा? क्योंकि body move ही नहीं कर रही है तो velocity vector will be zero. A body is moving with 5 km per hour, 5 km per hour, 5 km per hour in a given direction. Same velocity से move करे, so acceleration vector of such body will be a zero vector. Whenever a vector is added to its negative, it also gives you a zero vector. हमने क्या किया? हमने वेक्टर a को उसके ही नेगेटिव में ऐड कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? जीरो वेक्टर। क्यों? क्योंकि जब हम वेक्टर की बात करें तो किसी ना किसी प्लेन में कहीं ना कहीं वो होगा, कुछ ना कुछ उसका डायरेक्शन होगा। ऑल्दो इट्स क्वांटिटी द मैग्नीट्यूड मे बी जीरो बट इट विल हैव अ डायरेक्शन, सो दिस इज नल वेक्टर. I hope you understood. Now in the next lecture we'll discuss about unit vector and its properties.